حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کیسے حضرت شمیل علیہ السلام یا جنہیں حضرت شمول علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ فرمان کے مطابق جب مقدس صندوق کی واپسی ہو گئی تو صندوق کی واپسی کے بعد بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا۔ طالوت نے تمام لشکر کو جمع کیا، اس کو درست کیا، پھر دشمنوں سے جنگ کرنے کے لیے بیت المقدس کی طرف چل پڑے۔ کئی دن کے مسلسل سفر کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ، بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے حالات میں طالوت نے ان سے کہا، بہت جلد تمہارا گزر ایک نہر کے پاس سے ہوگا، اس نہر میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا ایمان کس قدر مضبوط ہے، تم میں برداشت کی کتنی قوت ہے، تم دشمنوں سے کس طرح ملتے ہو۔ جس نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرے ساتھ نہ آئے، اور جس نے پانی نہ پیا یا صرف ایک چلو پانی پیا تو وہ میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب نہر آئی تو ان میں سے زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا، بہت کم ایسے تھے جو پختہ نکلے، انہوں نے پانی نہ پیا، بس وہ لوگ طالوت کے ساتھ رہ گئے۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پانی پیا تھا ان کی پیاس بڑھتی چلی گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہم میں جالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ وہ لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے تو ان کی بزدلی کا اثر مجاہدین پر بھی پڑتا۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی رہ گئے۔ یہ باقی بچے ہوئے لوگ طالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ ان کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن یہ لوگ ایمان کی طاقت سے مالا مال تھے، اس کے جوش و جذبے کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے۔ آخر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ دشمن کے لشکر کا قائد جالوت تھا۔ وہ بہت بد اخلاق، سخت گیر اور جنگجو تھا، جنگی چالوں سے خوب واقف تھا۔ جو بھی اس کے مقابلے میں آتا وہ اسے قتل کر دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لشکر نے جب نہر عبور کی تو اس کی تعداد بہت تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذکر کیا کرتے تھے کہ غزوہ بدر میں اتنے صحابہ شریک تھے جتنے طالوت کے ساتھی تھے۔ جنہوں نے طالوت کے ہمراہ دریا عبور کیا تھا ان کی تعداد 300 افراد سے کچھ زیادہ تھی۔ جالوت کا لشکر تعداد میں کئی گنا بڑا تھا، اس کی تیاری بھی ہر لحاظ سے مکمل تھی۔ بنی اسرائیل نے جب اس بڑے لشکر کو دیکھا اور اپنی کم تعداد کو بانپ لیا، آج ہم میں طالوت اور اس کی فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں۔ ان میں سے جو پختہ ایمان والے تھے وہ بول اٹھے، فتح نہ تو زیادہ تعداد سے ہوتی ہے نہ زیادہ تیاری کرنے سے، فتح تو بے شک اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ ہم ایسی کتنی جماعتیں دیکھ چکے ہیں جو تعداد میں بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان ایمان والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت ہی عاجزی اور پرخلوص انداز میں دعا کی اور یوں کہا، اے ہمارے پروردگار، جتنا صبر ہے سب ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما اور ان پر غالب آنے میں ہماری مدد فرما۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو جالوت نے اونچی آواز میں للکارا، میرے مقابلے پر کون آتا ہے؟ بنی اسرائیل کے لشکر کے تمام لوگ خاموش رہے۔ وہ جانتے تھے کہ جالوت بہت جنگجو ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو جالوت نے پھر اپنی بدی آواز میں کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا بہادر نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ کیا تم سبھی بزدل ہو؟ اس پر بھی سب خاموش رہے۔ جب کوئی جنگ کے لیے نہ نکلا تو طالوت کو بہت رنج ہوا اور تکلیف پہنچی، گویا ان میں ابھی بھی کچھ بزدلی باقی تھی۔ جالوت کا قد 6 ہاتھ سے بھی زیادہ تھا، وہ پیتل کی زرہ اور کھول پہنے ہوئے تھا۔ اسرائیلی اس کے قصے سن سن کر اس سے مرعوب ہو چکے تھے۔ ان میں اس کے مقابلے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کوئی بھی مقابلے کے لیے نہ نکلا۔ آخر بادشاہ طالوت نے اعلان کیا، جو بہادر آگے بڑھ کر جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور شہزادی سے اس کا نکاح کروں گا۔ یہ اعلان سن کر کئی آدمی میدان میں نکلے، لیکن ان کی نگاہ جب جالوت پر پڑی تو وہ پھر خوف کھا کر واپس لوٹ آتے۔ آخر ایک کم سن نوجوان باہر نکلا، اس کا نام داؤد تھا۔ اس نے کہا، میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ یہ کم سن نوجوان داؤد کو بعد میں نبوت بھی ملی۔ یہ اپنے 6 بھائیوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ داؤد علیہ
अलैहिस्सलाम इस वक्त बहुत छोटे थे, वो जंग में शरीक थे। वालिद इसराइल और अपने बेटों के हालात मालूम करने के लिए इन्हें लश्कर के साथ भेज दिया था। रास्ते में आपको 3 पत्थर पड़े हुए मिले। अल्लाह ताला के हुक्म से उन पत्थरों ने दाऊद से कहा, ऐ दाऊद अलैहिस्सलाम, हमें उठा लो, हम जालूत को कत्ल कर देंगे। आपने वो पत्थर उठा लिए, वो मैदान में पहुंच गए और जालूत की पुकार के जवाब में कहा, मैं तेरा मुकाबला करूंगा। लश्कर के सलार तालूत ने कहा, नहीं, तुम इसके मुकाबले पर ना जाओ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारा इतना तजुर्बा नहीं, तुम जालूत का मुकाबला नहीं कर सकोगे। वो बहादुर होने के साथ साथ जंगी चालों से भी खूब वाकिफ है। उस वक्त ये बात अक्लमंदी के खिलाफ थी कि खुद तालूत जालूत के मुकाबले में निकलते, क्योंकि उनकी शिकस्त की सूरत में सारा लश्कर तितर बितर हो जाता। इसलिए उन्होंने मुड़कर अपने लश्कर की तरफ देखा और दोबारा ऐलान किया, मैं वादा करता हूँ, जो मुजाहिद इस सरकश को कत्ल करेगा, मैं उससे अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, उसे बादशाह में अपना हिस्सेदार बना लूंगा। इस मर्तबा भी वो कम सिन नौजवान यानी दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकल कर बोले, ऐ बादशाह, मुझे मुकाबले की इजाजत दे दें। तालूत ने फिर वही बात की, आप अभी कम उम्र है, ना तजुर्बा कार हैं, वो जबरदस्त जंगजू है, आप इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, वो आसानी से आपको कत्ल कर देगा। इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, ऐ बादशाह, कामयाबी जिस्मानी ताकत, असला और तजुर्बे से नहीं होती, इसका ताल्लुक तो अल्लाह ताला की जात से है जो ताकतवर और गालिब है। मैं मोमिन हूँ और वो काफिर, इसलिए अल्लाह ताला जरूर मेरी मदद करेंगे। आखिर तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को जालूत से मुकाबले की इजाजत दे दी। दाऊद अलैहिस्सलाम मुजाहिदीन की सफ से निकलकर जालूत की तरफ बढ़ा, वो भी इस हालत में कि ना तो उसके सर पर खुद था, ना बदन पर जेरा थी, ना उसके हाथ में कोई असला था, बस उसके हाथ में चमड़े का एक सादा सा हथियार था। उसके सरे में पत्थर रखा हुआ था। इस हथियार को गोपिया कहा जाता है। तालूत ने देखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम के पास कोई असला नहीं है। उसने अपनी जरा खुद और तलवार उतार कर दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा दी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब वो जालूत की तरफ बढ़े। जालूत मजाक उड़ाने के अंदाज में हंसा और कहने लगा, ऐ बच्चे, चला जा, कहीं दूर जाकर खेल, ये खेलने की जगह नहीं है, ये तो मैदान जंग है। इस पर दाऊद अलैहिस्सलाम बोले, मैं तो लड़ने के लिए आया हूँ, आगे आओ और मेरा मुकाबला करो। जवाब में जालूत ने कहा, ऐ बच्चे, मैं तुझे कत्ल नहीं करना चाहता। वो क्या जानता था कि जिसे वो मामूली सा बच्चा समझता है वो जुर्रत और बहादुरी का पैकर है। दाऊद मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। अब जालूत गुस्से में आ गया। उसने तलवार ली और दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने गोपे में रखा हुआ पत्थर ताक कर उसकी तरफ फेंका। पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा। उसका सर फट गया। वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा, फिर इसी हालत में मर गया। उसके लश्कर ने जब अपने बादशाह को मरते देखा तो उन पर खौफ छा गया, दिलों पर रोब तारी हो गया। वो इधर उधर भागने लगे। हर एक खुद को बचाने की फिक्र में पड़ गया। तालूत ने अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। अब जालूत के लश्कर का कत्ले आम शुरू हो गया। फिर उन्हें कैदी बनाया जाने लगा। आखिर तालूत का लश्कर जालूत के लश्कर पर अल्लाह ताला के हुक्म से गालिब आ गया। अल्लाह ताला फरमाता है, मोमिनों ने अल्लाह के हुक्म से काफिरों को शिकस्त दी और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाही और हिकमत अता की और जो चाहा उसे सिखाया। जालूत के कत्ल के बाद तालूत ने अपना वादा पूरा किया, अपनी बेटी की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दी, अपने लश्कर का सिपा सलार भी उन्हें बना दिया। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत मशहूर हो गए। बनी इसराइल उनसे बहुत मोहब्बत करने लगी। वो तालूत से भी ज्यादा उनके महबूब बन गए और ये दाऊद अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और इनकिसारी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें यह फजीलत बख्शी थी। आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते। उसकी तस्बीहात और तारीफ ने उनकी अजमत को मजीद बढ़ा दिया। कुछ मुद्दत बाद तालूत फौत हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बन गए। हुकूमत की बाग दौड़ आपके हाथों में आ गई। इस अरसे में उन पर अल्लाह ताला का एक जबरदस्त इनाम ये हुआ कि आपको नबूवत और रसालत से सरफराज कर दिया गया। आपने लोगों पर अदलो इंसाफ से हुकूमत की। आपको आपकी नरमी की वजह से जाना जाता था। अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म और हिकमत से भी नवाजा था, फिर नबी बनाकर भेजा था। उनकी तरफ आसमान से किताब नाज़िल फरमाई, उसको ज़बूर कहा जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन पर अल्लाह ताला
ताला ने किताब नाजल की, वरना इससे कबल तमाम अंबिया कराम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर ही अमल करते थे और तौरात पर अमल किया करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए, यानी अल्लाह ताला ने 500 साल बाद नई शरीयत नाजल की। आप अलैहिस्सलाम यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए ज़बूर की तलावत और इसके तराने इतने हल्के और आसान कर दिए थे कि आप अपनी सवारी तैयार करने का हुक्म देते और सवारी पर ज़ेन कसे जाने से पहले पहले ज़बूर मुकम्मल पढ़ लेते। ये भी आप अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था। ज़बूर में अल्लाह की हम्दो सना थी और इंसानों की बंदगी के मुतालिक मज़ामीन थे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हम नसीहत के बारे में ज़बूर में लिख चुके हैं कि बेशक जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज भी बहुत खूबसूरत थी और ये अल्लाह ताला की अता थी। उन जैसी खूबसूरत आवाज और किसी की नहीं थी। आप बहुत ज्यादा परहेजगार, हमेशा इबादत करने वाले, बहुत ज्यादा तस्बीहात करने वाले इंसान थे। आप रात को क़याम फरमाते, रात का तिहाई हिस्सा नमाज और ज़बूर पढ़ने में गुजारते थे। आपकी खूबसूरत आवाज का अजीब असर था। परिंदे सुनने के लिए जमा हो जाते, वो भी आपके साथ तस्बीहात करने लगते, यहाँ तक के पहाड़ भी आपके साथ तस्बीह करते। कुरान मजीद में है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ और परिंदे तभी किए जो तस्बीह किया करते थे। आप कसरत से रोजे रखते, एक दिन रोजा रखते, एक दिन अफ्तारी करते। आपके रोजों के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन रोजे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने अहले खाना को जगा देते और फरमाते, ऐ अहले दाऊद उठो और नमाज पढ़ो, क्योंकि ये वक्त बहुत मकबूल है कि इसमें अल्लाह ताला अपनी तरफ रजू करने वालों की दुआ कबूल फरमाते हैं, स्वाय जादूगर और जुल्म से अशरो वसूल करने वाले शख्स के। अल्लाह ताला ने आप पर बहुत एहसानात फरमाए, उनके लिए नबूवत और बादशाहत को जमा कर दिया, सुरीली आवाज से नवाजा। हुकूमतों बादशाह के बावजूद सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम बैतुल माल में से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। अपने अहलो अयाल का बोझ उठाते थे, अपनी मेहनत और हाथ की कमाई से हलाल रोजी हासिल करते और इसी को जरिया मुआश बनाते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यूं मुखातब किया, ऐ दाऊद, हमने तुझे जमीन में बादशाह बनाया, बस तुम लोगों में इंसाफ से फैसला किया करो और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हारे अल्लाह की राह से हटा दे। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं, इनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से रोजी कमाते थे। बयान किया जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, ऐसी सूरत पैदा कर दे मेरे हाथ की कमाई आसान हो जाए, क्योंकि मैं अहलो अयाल का बोझ बैतुल माल पर नहीं डालना चाहता। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश को अल्लाह ताला ने इस फजीलत के साथ कबूल किया कि लोहे को उनके लिए नरम कर दिया। लोहा उनकी हाथों में आते ही मोम की तरह नरम हो जाता। नरम करने के लिए आग में डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी, न उन्हें हथौड़े बरसाने की जरूरत पेश आती थी। आप लोहे को अपने हाथों से धागों की तरह बुनते थे। अल्लाह ताला की इस नेमत से जहाँ आपने खुद फायदा उठाया, वहाँ अपनी कौम को भी फायदा पहुँचाया। लोहे से जहरे बनाते, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे की तार बनाते, फिर एक तार को दूसरे से जोड़ देते। इस तरह लोहे का लिबास तैयार हो जाता। जंग के मैदान में ये लिबास काम आता। इस लिबास को पहनने वाला तलवारों और नेजों के वार से बच जाता था। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने जर्रा बनाई। आप जहरे बनाकर फरोख्त किया करते थे। इन्हीं की कुछ आमदनी अपने अहलो अयाल पर खर्च करते थे और बाकिया गरीबों पर सदका खैरात कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम के दौर में बहरे कलजम के किनारे मदीन और कुह तूर के दरमियान एक शहर अलिया था। इस शहर के लोग दरियाए करीब होने की वजह से मछली का शिकार करने के आदी थे। ये लोग यहूदी थे। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन इन पर मछली का शिकार हराम करार दे दिया था। इन लोगों को नाफरमानी की आदत थी। अब अल्लाह ताला की तरफ से उन पर यह आजमाइश आई कि हफ्ते के दिन दरिया में मछलियों की इतनी कसरत होने लगी कि दरिया की सतह पर तैरती नजर आने लगी, बाकी दिनों में गायब रहती। इन लोगों से सब्र ना हो सका। अल्लाह ताला के साफ हुक्म के बावजूद हिले करने लगे। दरिया का पानी काट
काट ले और हौज बना ले और इन हौजों में हफ्ते के दिन मछलियाँ तैर कर आ जाती। ये लोग इनके वापस जाने का रास्ता बंद कर देते, अगले दिन इनको पकड़ लेते। इस तरह वो ये साबित करना चाहते थे कि उन्होंने हफ्ते के दिन शिकार नहीं खेला। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा करने से मना किया, कुछ लोग ऐसे थे जो आध मर्तबा मना करके बैठ गए और कुछ ऐसे थे जो ना मना करते और ना खुद शिकार खेलते थे। जो मना करने वाले थे उन्होंने शिकार खेलने वालों से मिलना जुलना छोड़ दिया, इनसे अलग रहने लगे। एक दिन उन्होंने इनकी आवाजें ना सुनी तो उन लोगों को देखने के लिए रुके। उन्होंने देखा कि अब हर घर में इंसानों की बजाय बंदर थे। इनके इस जुर्म पर अल्लाह ताला ने इन्हें बंदर बना दिया था। जब ये लोग इन बंदरों के पास पहुँचे तो अपने सर इनके पैरों पर रख कर रोने लगे और 3 दिन में मर गए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत अल अराफ की 4 आयात 163 ता 166 में इस वाक़ये का जिक्र यूं फरमाया है, और इनसे इसकी बस्ती का हाल पूछो जो दरिया के किनारे थी। जब हफ्ते के मामले में हद से बढ़ने लगे, जब उनके पास मछलियाँ हफ्ते के दिन पानी के ऊपर आने लगी और जिस दिन हफ्ता ना होता तो ऊपर ना आती थी, हमने उन्हें इस तरह आजमाया, इसलिए वो नाफरमान थे। और जब इनमें से एक जमात ने कहा कि इन लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या इन्हें सख्त अजाब देने वाला है, उन्होंने कहा तुम्हारे रब के रूबरू अजार पेश करने के लिए, और शायद के ये डर जाए। फिर जब वो भूल गए इस चीज को जो इन्हें समझाई गई थी तो हमने इन्हें नजात दी जो बुरे काम से मना करते थे, और जालिमों को इनकी नाफरमानी के बाइस बड़े अजाब ने पकड़ा। फिर वो जब इस काम में हद से बढ़ गए जिससे रोका गया था तो हमने हुक्म दिया कि ये जलील होने वाले बंदर बन जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक रोज अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ परवरदिगार, दिन और रात में एक घड़ी भी ऐसी नहीं गुजरती कि मैं या मेरी आल में से कोई शख्स तेरी इबादत में मशगूल ना हो। अल्लाह ताला को अपने पैगंबर का ये फखर, ये अंदाज पसंद ना आया। चुनाचा अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ऐ दाऊद, ये जो कुछ भी है सिर्फ हमारी रियायत और हमारे फजलो करम की वजह से है, वरना तुम और तुम्हारी औलाद में ये कुदरत कहाँ कि वो इस नज़्मो नसक पर कायम रह सके। और जबकि तुमने ये दावा किया है मैं तुमको आजमाइश में डालूंगा। एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत में मशगूल थे कि 2 आदमी दीवार फलांद कर अंदर आ गए। इससे आपकी इबादत में खलल पड़ गया। इन दोनों में से एक कहने लगा, आप डरे नहीं, हमारे दरमियान एक झगड़ा है, इसका फैसला आपसे कराना चाहते हैं, सो आप इंसाफ फरमाए। हम दोनों भाई हैं, इसके पास 99 दुम्बे हैं और मेरे पास सिर्फ 1 दुम्बा है। ये कहता है अपना 1 दुम्बा भी इसे दे दूं ताकि इसके पास 100 दुम्बे पूरे हो जाएं। ये ताकत में भी मुझसे ज्यादा है, बात करने में भी मुझसे तेज है और लोग भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। गर्ज मेरा हक छीनने के लिए जबरदस्ती की बातें करता है। चूँकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी थे इसलिए फौरन आप अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह ताला ने आपको आजमाया है, इसलिए फौरन सजदे में गिर गए और माफी मांगी। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को माफ फरमा दिया। यानी आप अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये से एहसास हो गया कि इन दोनों आदमियों का दीवार फलांद कर अंदर आना मेरी तन्हाई की इबादत में खलल डालना था और ये कुदरत की तरफ से इम्तिहान था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल के मामले में बहुत ज्यादा गैरतमंद थे। आप अलैहिस्सलाम घर से बाहर जाते तो दरवाजा बंद कर देते थे। आप अलैहिस्सलाम की वापसी तक कोई आप अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल नहीं हो सकता था। एक दिन आप अलैहिस्सलाम बाहर गए हुए थे, घर का दरवाजा बंद था, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम वापस आए तो घर में दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम के घर में एक आदमी नजर आया। आप अलैहिस्सलाम हैरान हुए कि घर का दरवाजा तो बंद था, फिर ये शख्स अंदर कैसे दाखिल हुआ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस आने वाले शख्स से पूछा, तू कौन है? जवाब में उसने कहा, मैं वो हूँ जो बादशाहों से नहीं डरता, ना मुझे कहीं दाखिल होने से रोका जा सकता है। ये सुनकर सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तो जरूर तू मौत का फरिश्ता है, मैं तुम्हें खुशामदीद कहता हूँ। मौत के फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। आप अलैहिस्सलाम अपने खालके हकीकी से जा मिले। आप अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 35 साल तक हुकूमत की। आप अलैहिस्सलाम से पहले किसी ने भी ऐसी जबरदस्त हुकूमत नहीं की। वफात के वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी।